Radhe Radhe children. Now, previously we have learned in quadratic equation how to solve the equations by the three methods. I again recollect you the three methods. That was first was factorization method. Another was perfect square method, and third was Sridhar Acharya's method. So these are the three methods by which how we solve the sums. Now, how to solve the problems. Now, if you see your exercise 4.1 question number 2, it is asked you to form quadratic equation. Here they have only asked you to form quadratic equation. For this, I shall give you some notes, or which I call it as GM. First number sum. When you read the question, the area of rectangular plot is 5 to 8 meters square. So, area of rectangular plot, that is given to you 528 meters square. The length of a plot, length of the plot is. Now, the first point is, whenever you get word is, was, I'm writing is, are, was, were, will, shall, then use equal to sign there. देखिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे को सबसे हार्ड अगर चीज पड़ती है तो प्रॉब्लम्स हार्ड पड़ते हैं. अब वो प्रॉब्लम्स हार्ड नहीं होते हैं, बट वो जो वर्ड फॉर्मेशन होता है वो तकलीफ देता है. तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं. जैसे कि कभी भी आपके पास वर्ड आता है इज, आर, वॉज, वेयर, विल, शेल, तो हर बार आपको वहां पर इक्वल्स टू लगा देना है. मैं क्वेश्चन वापस पढ़ता हूं. द लेंथ ऑफ द प्लॉट, तो मैंने लेंथ लिख दिया, ऑफ द प्लॉट इज, तो इज यानी मैंने इक्वल्स टू लगा दिया, इज वन मोर देन. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, कभी भी आपके पास देन करके वर्ड आएगा तो आप क्या करेंगे, पुट डैश देन, या प्लस और माइनस एंड एड नंबर आफ्टर देन. जैसे अगेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर, सॉरी बिफोर, तो यहां डैश करें. अब यहां पे वर्ड मोर आया, सो प्लस आप कब यूज करोगे, जब आपके पास वर्ड होगा मोर, एक्सीड, इंक्रीज, तो आप यहां पर प्लस यूज करोगे. यू विल यूज प्लस साइन देयर. माइनस कब यूज करोगे, जब लेस या डिक्रीज वर्ड आएगा. अब यहां पे दिया है लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज वन मोर, तो प्लस करके मैंने वन लिख दिया क्योंकि वन मोर था, मगर आगे डैश करना है. वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ. सो नाउ and put things written after them in gap. गैप का मतलब ये जो डैश किया है ना वहां पर. फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं. द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर.
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर्स पे लिख दिया। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज, द लेंथ ऑफ प्लॉट, तो लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज यानी इक्वल्स टू इज 1 मोर, तो डैश करके +1, तो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस इट्स ब्रेथ को डैश के अंदर लिख दिया। नाउ बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यू रिक्वायर्ड टू सपोज ओनली वन वेरिएबल, और वेरिएबल हम हर बार वही सपोज करेंगे जो हमारे इक्वल्स टू के इस साइड पे होता है। तो अब हम लिखेंगे यहां पे लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x, देन length of rectangle becomes 2x plus 1. Now here area of rectangle they ask, so I write here area of rectangular plot, that is equals to length into breadth. Area of rectangular plot is given to you 528, length is 2x plus 1 and breadth is x. Now when you multiply this, this is 528 is equals to 2x square plus x. Now if I take this 528 this side, so I could write this as 2x square plus x minus 528 is equals to 0. Now this is my quadratic equation. Now second number sum for you, the product of two consecutive positive integer. Now as I told you, one more thing you will learn here. So whenever you get a word consecutive, you get a word consecutive numbers, so consecutive numbers are always x, x plus 1, x plus 2, x plus 3 and so on. But instead of this consecutive number, you get a word consecutive odd or even number. Then numbers are always x, x plus 2, x plus 4 and so on. So always remember this thing, whenever you get a word like this consecutive number, so this also you are supposed to remember. Now second number sum tells you the product of two consecutive positive integers. So I write here let two consecutive positive integers are, see they are consecutive positive integers. Positive integers, this word implies only at the point of answer. आपका आंसर आएगा तब आपको उस दो वैल्यूज में से पॉजिटिव वैल्यू ही चूज करनी, इसलिए दिया है। यानी ये एक्चुअली कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही है, इंटीजर का मतलब कॉन्जिक्यूटिव नंबर ही हुआ। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर होते हैं आपके पास, एक x होता है और एक x प्लस 1 होता है, दो नंबर्स होते हैं आपके पास। अब इसको प्रोडक्ट वर्ड यूज किया है, यानी फिर से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, कभी भी आपके पास वर्ड प्रोडक्ट आता है तो आप क्या करते हो, उसे मल्टीप्लाई करोगे। सो नाउ दिस इज x इंटू x प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 306, so this is 306. When I multiply this, x square plus x minus 306 is my answer. We are only teaching to you presently to form the equations. Now third number sum, रोहन्स मदर, रोहन्स मदर, तो हम यहां पे लिखते हैं रोहन्स मदर। फिर क्वेश्चन में है इज वर्ड आया तो हमने क्या किया, यहां पर इक्वल्स टू साइन दे दी। इज 26 years older than him, देन वर्ड आ गया
मैंने बताया था जब कभी भी वर्ड ध्यान आ जाएगा तो पहले आपको डैश कर देना है। अच्छा, अब वर्ड आपके पास ओल्डर आया, ओल्डर का मतलब बड़ा, तो अब मैं यहां पर एक और वर्ड ओल्डर ऐड कर देता हूं और यहां पर मैं यंगर ऐड कर देता हूं। तो अगर ओल्डर आया तो मैं फिर से प्लस करूंगा। रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर, तो प्लस 26 देन हिम, हिम का मतलब हुआ रोहन इटसेल्फ, तो हमने लिख दिया रोहन। अब सपोजिशन लेंगे, लेट। अच्छा, एज का कभी भी सम्स होगा, एज कभी भी एज का सम्स होगा तो आप हर बार सपोजिशन में प्रेजेंट एज ही लेंगे। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। मैंने कहा था राइट हैंड साइड का ही सपोजिशन लिया जाता है, एंड प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर it becomes x plus 26 years. आगे, the product of their age 3 years from now, 3 years from now, तो अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई, 3 years from now, so यहां पे मुझे लिखना है आफ्टर 3 years। अच्छा, अभी प्रेजेंटली रोहन की एज एक्स ईयर है, तो आफ्टर 3 ईयर रोहन की एज एक्स प्लस 3 ईयर हो जाएगी, क्योंकि आफ्टर 3 ईयर्स 3 साल प्लस हो जाएंगे। सेम वे रोहन की मदर्स एज, तो रोहन्स मदर एज, अभी उसकी मदर एक्स प्लस 26 है, तो 3 साल के बाद उसमें प्लस 3 किया तो वो x प्लस 29 ईयर्स की हो गई। सो आफ्टर 3 ईयर्स द एज ऑफ रोहन इज x प्लस 3 एंड एज ऑफ रोहन्स मदर बिकम्स x प्लस 29। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई करना है, x प्लस 3 x प्लस 29 इज इक्वल टू product of their age will be 360, will be अगेन फिर से ध्यान रखिए, मैंने आपसे कहा था विल वर्ड आएगा तो आपको इक्वल टू, तो विल बी 360। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 minus 360 is equals to 0. Now, if I solve this, this is x square plus 32x. If I subtract this, this is minus, this is 3, 15, 7, 2. So, now this is my quadratic equation. Now one more sum, sum number 4. Sum number 4. The train travels a distance of 480 kilometers at uniform speed. अब बेटा देखो, ये जो स्पीड के सम्स हैं, इस सम्स के लिए हम लोग एक डिफरेंट टेक्निक से काम करते हैं, एकदम डिफरेंट टेक्निक है। कभी भी स्पीड के सम्स हो तो डिफरेंट टेक्निक से काम करते हैं, इंक्रीज डिक्रीज सम्स कहे जाते हैं इनको। अब वो कैसे काम करते हैं वो मैं बताता हूं। पहले तो हमें पूरा डेटा लिख देना है। द ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स, सो हियर डिस्टेंस इज 480 किलोमीटर्स। फिर आगे दिया हुआ है इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस। अच्छा, लेस स्पीड आई तो एक्चुअली स्पीड क्या है? तो देखिए एट द एंड ऑफ क्वेश्चन ऐसा लिखा है फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो मैं यहां लिखता हूं लेट
स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर्स पर आवर। अब आगे बोला है इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर्स पर आवर लेस। लेस का मतलब स्पीड घटी है मतलब डिक्रीज हुई है। तो अब मैं यहां स्पीड में यहां नीचे लिखूंगा डिक्रीज द स्पीड ऑफ ट्रेन। 8 किलोमीटर घटी है तो पहले x थी, अब 8 घट गई तो इट बिकम्स x माइनस 8 किलोमीटर्स पर आवर। इफ द स्पीड हैज डिक्रीज देन इट वुड टेक 3 आवर्स मोर। अब सर मोर हो या लेस हो, हमने तो लिख दिया टाइम 3 आवर्स बस। We need to find speed of the train. Now you are supposed to find speed of the train. Okay. Now to find speed of the train, first of all, in 9th standard, we were having a definition that is speed is equals to distance upon time. But now here we will use time is equals to डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब इसको और अच्छी तरह से याद करने के लिए आप लोगों को मेरा नाम याद रखना है। एक्चुअली मेरा पूरा नाम त्रिलोकी दिनेश कुमार शर्मा है, त्रिलोकी दिनेश कुमार शर्मा। तो टाइम इज इक्वल्स टू त्रिलोकी दिनेश कुमार शर्मा, दैट इज time is equals to distance upon speed. Time is equals to distance upon speed. You are supposed to remember time is equals to distance upon speed. अच्छा, अब टाइम मुझे दो चीज के लिए चाहिए, एक नॉर्मल स्पीड के लिए, टाइम फॉर जिसे हम यूजुअल स्पीड बोल रहे हैं, यूजुअल स्पीड, और दूसरा हमें चाहिए टाइम फॉर डिक्रीज्ड स्पीड। सर फर्क पड़ता है ना कि अगर हम नॉर्मल स्पीड पे जा रहे हैं, नॉर्मल यूजुअल स्पीड पे जा रहे हैं तो हमें कुछ अलग टाइम लगेगा, और अगर हमारी स्पीड घट गई तो हमें जाने का टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब हमारे पास फॉर्मूला टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, तो हम इसको नॉर्मल इसके लिए टाइम लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपके पास 480, तो राइट 480, और आपकी स्पीड कितनी है यूजुअल स्पीड x, तो यहां पे टाइम हो जाएगा 480 बाय x। सेम में डिक्रीज स्पीड के लिए डिस्टेंस इज सेम 480 एंड स्पीड डिक्रीज होके x माइनस 8 हो जाती है। अब आपके पास सीधा इक्वेशन आएगा। इक्वेशन के लिए, इक्वेशन फॉर्म करने के लिए मैं यहां पे माइनस की साइन लगाता हूं, यहां मेरे पास बिगर वैल्यू आनी चाहिए हर बार, यहां मेरे पास स्मॉलर वैल्यू आनी चाहिए, और देन इक्वल्स टू जो टोटल टाइम है इन आवर्स वो मुझे लिख देना है। अच्छा, अब इन दोनों में से बिगर वैल्यूज कौन सी है? एक्चुअली इन दोनों में से बिगर वैल्यू ये हो गई। अगर आप x की जगह पर 10 डालते हैं यहां पर तो ये वैल्यू बढ़ी आएगी। सो हम लिखेंगे यहाँ पे 480 अपॉन दिस माइनस 480 अपॉन x। नाउ इफ यू टेक एलसीएम, 480 को कॉमन निकाले, 1 अपॉन again 480 as it is. If I take LCM, this is x minus 8, x into x minus 8 is equals to 3. 480 x minus x plus 8 x and x gets cancel, ये इधर आ जाएगा, ये नीचे आ गया, तो 480 into 8 divided by 3, that is x square minus 8x. Therefore
I can write it as x square minus 8x is equals to, if I do cancellation, 3 ones are 1, 6, 0. Now, if I multiply 6 by this, 0, 1280. If I bring, therefore my equation becomes x square minus 8x to 0.